Okay, students, good morning, all of you. Today, part 3, chapter 12, light, electricity. Electricity, class 10, chapter 12, that is the third part. Written at the board, measurement of electrical energy. Practical work, I thought that the practical work should be done at the online classes because practical generally very important for your examination as well as your further classes too. If practical is there, many students don't know how to do what is the zero error and etc. That's why I have started this topic. Measurement of electrical energy, we need an electric circuit having ammeter, voltmeter, rheostat and resistance. If there is electrical circuit is this one, this resistance, we have to measure the current, we need ammeter as well as battery. Positive terminal, negative terminal, and voltmeter should be added parallel to the circuit. Students, you should know that voltmeter should be added always parallel to the circuit and ammeter in series. Rheostat is this one. When you go to your practical lab, then this instrument for the Ohm's law, to prove the Ohm's law, this circuit is required, and we find the ammeter reading, voltmeter reading, and then we can find the resistance, the value of resistance, how much electrical energy consumes. That can be also calculated with the help of voltmeter reading, ammeter reading. Okay, everything I have mentioned here. See, the ammeter, three readings are there. Ammeter and voltmeter both are hot wire meters, and the construction of ammeter and voltmeter is same internally. Only one thing is different. The resistance of ammeter is very less, I mean nearly 1 ohm or less than 1 ohm, and voltmeter of resistance of voltmeter is very high, 1000 ohm, more than 1000 ohm maybe. How the instrument internally, the other structure, other construction of the instrument, that is the hot wire meter principle, that is the same. Only you can change ammeter to voltmeter and voltmeter to ammeter. One more thing you should learn, that ammeter should be connected always in series connection, and voltmeter should be connected in parallel. This rheostat, variable resistance, should be also connected in series. Okay. Many times this type of questions comes in your board examination, that reading is given. You have to find out what is the least count of the instrument ammeter. If you know about ammeter, the reading just like the voltmeter also. Okay, one is sufficient. So you should know first of all ammeter. Likewise, the voltmeter can be done. The ammeter reading here, ammeter reading first figure, and dot line. There is a dot line. Initial reading is there. Without supply the current, the initial reading of this ammeter is 0. Pointer shows 0. Dot line is initial reading without supply the current, and dark line after supply the current, the reading is there. Okay. This one shows without supply, dot line shows 0, I mean indicator shows without line is 0, then there will be no zero error. Okay. If this type only, not this indicator, this one is only indicated, and you have you are asked what is the zero error of this instrument. This instrument zero error is 0 only.
But second one, the dot line, I mean without supply current, the indicator shows 1 point more than 0. 1 point more than 0. You can see here the 0 to 1 ampere is divided into 4 divisions. So one division, the reading of one division will be the least count of this instrument, because we can measure only the minimum reading this one division value. So 10 division value is 1 ampere. So 1 division value will be 1 by 10. That is the least count of the instrument. That instrument may be voltmeter or ammeter, no problem. But you can see here 0 error. One division is after 0. Already without supply current, this pointer shows one division further. So this is the error. It should be 0. Here is no 0 error, but here is 0 error, one division. So we should count this 0 error. One division value will be 1 upon 10. According to least count will be also 1 upon 10. And 0.1 ampere will be the 0 error. If the pointer shows right side of the right side, then the 0 error will be positive. Mind it, if the pointer shows right side from the 0, then the 0 error will be positive 0 error. Okay? And in third figure, 0 error, here the pointer shows how much? This pointer shows one division before the 0. One division before the 0. It means the pointer not shows 0 initially. That's why it has also error. But this error is negative error, because left side of the 0 will be negative 0 error. One division or two division may be, but mostly in your board question, only one division may become. I think 2 division may be, but no problem. Likewise, you can count the 0 error. 1 upon 10 minus 1 upon 10 is equal to minus 0.1 ampere. That will be 0 error, negative 0 error. Then after we should count the 0 error correction. How we will count? See, for the 0 error correction, you will write the ammeter reading. For the first figure, I am doing correction for the first figure. 0 error, the ammeter reading will be, ammeter reading is how much? 6 division is there. Student, you can see 6 division. So 6 by 10. One division value is 1 upon 10. 6 division value will be 6 upon 10. 6 by 10 plus 0. 0 error is 0 only. That's why the reading will be 0.6 ampere only. For the first figure. For the second figure, the accurate reading will be ammeter reading. Ammeter reading, you can see the 6 division, 6 upon 10 plus 0 error. Here 0 error is plus 0.1. Always you should know that the 0 error should be subtracted always. According to this formula, 0 will be subtracted. I have written here 6 by 10 minus 0, that is the 0.6 only. And here also 6 by 10, the second figure, 6 division is, pointer is showing 6 division, so 6 by 10 in main reading, and the 0 error is 1 division, it is right side to the 0, that's why it is the positive 0 error, and this positive 0 error will be also subtracted 0.1 from the main reading. It will be subtracted and it will be 0.6 minus 0.1, that is the 0.5 ampere reading for the second instrument. For the third instrument, the reading, the correct reading will be, see this one. The ammeter reading, final reading is not given here. I am writing and doing this one. This one final reading. But initial, for the 0 error question, dot line shows that one division. It shows the one division before the 0.
That's why before the zero will be negative zero error. Negative zero error here how much? 5. 5 by 10 minus. If before the zero pointer shows without supply current, then it will be negative zero error. One division before, that's why minus 1 by 10. Minus 1 by 10. Zero error will be, you can see here, minus, minus, minus. Always zero error will be subtracted. If it is plus or minus. Minus 1 upon 10, then it will be 0.5 minus minus plus. Plus 0.1 is equal to 0.6 ampere. That is the correct reading of these three instruments. Okay, students? Okay, students? Once again, see, listen in Hindi also. The measurement of electrical energy, practical work is there. It is very important for your knowledge as well as for your examination also. Ammeter, voltmeter. Both are ammeter measures current reading and voltmeter measures voltage, PD, potential difference of the electrical circuit. You can see here ammeter is there, 3 readings are there. एमीटर एंड वोल्ट मीटर, देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर तो करंट को बताता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को बताता है, लेकिन इंटरनली जो कंस्ट्रक्शन है एमीटर या वोल्ट मीटर का, वो दोनों ही एक ही तरह बना होता है. वो हॉट वायर मीटर होता है. और थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन 1 ओम होता है और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है, एज मच हाई as we can do. Okay, for the instrument. तो जितना वो इंस्ट्रूमेंट के लिए हाई रेजिस्टेंस किया जाता है इंटरनल वोल्ट मीटर के लिए, और एमीटर के लिए वेरी लो, लेस देन 1 एम्पियर आल्सो. तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए जो भी एमीटर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, उसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते हैं. सपोज करिए आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया और वो 10 ओम का रेजिस्टेंस उसका पहले से है, तो एक से भी छोटा पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं उसमें सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, तो वो छोटा हो जाएगा, लेस देन 1 एम्पियर हो जाएगा और एमीटर की तरह काम करने लगेगा. थोड़ा सा और इसमें सुन लीजिए, वो एमीटर की तरह क्यों काम करेगा, इसलिए करेगा जब रेजिस्टेंस सर्किट का कम होगा तो उसमें से वोल्टेज की आवश्यकता ही नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉनों को पास करने के लिए उस पर प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, करंट इजीली पास हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑब्स्टेकल जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल है, कम है, तो करंट पास करेगी उसमें से. इसलिए उसके सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, पैरेलल में केवल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, लेस देन 1 ओम और 1 ओम. ओके, और पूछता है कि आप एमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बना देंगे, वोल्ट मीटर से एमीटर के रूप में कैसे काम करेंगे, तो ये भी आप जान लीजिए. केवल उसका इंटरनल में यदि वोल्ट मीटर है तो उसके पैरेलल में एक लेस देन 1 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, उसको शंट कहते हैं टेक्निकल भाषा में, शंट जोड़ दीजिए, तो वो एमीटर की तरह काम करने लगेगा. और उसको हटा करके उसके सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए 2K 3K मतलब किलो ओम का, तो वो उसमें उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और वही इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा. आप थोड़ा ये जान लीजिए कि वोल्ट मीटर क्यों काम करेगा, क्योंकि जब हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उसमें से करंट पास नहीं करेगी. उस चार्जेस को पास होने के लिए उस पर प्रेशर की आवश्यकता होगी. तो प्रेशर कौन देता है, वोल्टेज देता है. तो जब प्रेशर अप्लाई होगा इलेक्ट्रिकल जो सोर्सेज है जिससे अपना चला रहे हैं, तो प्रेशर तभी अप्लाई होगा जब रेजिस्टेंस आएगा, तो प्रेशर अप्लाई होगा और उससे वोल्टेज वो पास होगा और तब वो इंस्ट्रूमेंट वोल्ट को मेजर कर देगी, यानी पीडी को मेजर कर देगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी. ठीक है, अब आपको यहां मैंने दिखाया है जो 3 इंस्ट्रूमेंट, उसमें एमीटर की जो डॉट लाइन है, डॉट लाइन बताता है कि विदाउट सप्लाई ये जो पॉइंटर है बिना करंट के सप्लाई का यहाँ दिखा रहा है, और करंट सप्लाई देने पर ऐसे दिखा रहा है. जो डार्क लाइन है वो सप्लाई के बाद है और डॉट लाइन विदाउट करंट सप्लाई. तो डॉट लाइन वाला बताएगा आपको क्या कि इसमें जीरो एरर है कि
नहीं है। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि 0 पर यदि इनिशियली है विदाउट सप्लाई करंट, पॉइंटर 0 बता रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। और यदि पॉइंटर एक डिवीजन आगे बता रहा है, कभी कभी 2 डिवीजन भी बता सकता है, तो उसी तरह काउंट करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो एक डिवीजन यदि आगे बता रहा है पॉइंटर, तो इसका मतलब कि उसमें एरर है, वो पहले ही से एक डिवीजन बता रहा है बिना सप्लाई का। तो इसमें क्या करेंगे कि 0 एरर करेक्शन के लिए ये मैंने लिखा है 0 एरर करेक्शन में एमीटर रीडिंग, एमीटर या वोल्ट मीटर दोनों के लिए, देखिए वोल्ट मीटर के लिए अलग प्रोसेस नहीं है, इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट वो भी है, जो एमीटर का कर लेगा उसी तरह वोल्ट मीटर का भी कर लेंगे। इसलिए मैंने लिखा है एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग लिखिए, जो ये पॉइंटर जो डार्क लाइन दिखा रहा है वो लिखिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 0 एरर को, तो ये रीडिंग आपको करेक्ट रीडिंग पता चल जाएगी, चाहे इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं है। तीनों के लिए तीनों रीडिंग मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, जो फाइनल रीडिंग क्या होना चाहिए उसको मैंने दिखाया है। देखिए फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में ये 0 एरर 0 है, तो करेक्शन जब करेक्ट रीडिंग जो होगा है ना, इक्विवेलेंट रीडिंग जो आएगी वो मैंने करेक्ट रीडिंग, ये करेक्ट रीडिंग है, करेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का ये फर्स्ट का जो है क्या आएगा, जो एमीटर रीडिंग है, एमीटर रीडिंग आपने देखा कि 6 डिवीजन पर ये गया है, तो ये 1 से 0 को 10 डिवीजन में बांटा है, तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी 1/10, और 6 डिवीजन की वैल्यू क्या होगी 6/10, इसलिए मैंने 6/10 लिखा है। और एक इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए 0 एरर को तो माइनस ही किया जाता है लास्ट में, तो -0 किए हैं तो वैल्यू उतना ही हो गया। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में देखिए, सेकेंड का 0 एरर ये -1, 0 एरर +1 है, वहां पर मैं लिख भी दिया हूं कि एक डिवीजन आ गया है, इसलिए 1/10 = 0.1 एम्पियर उसकी रीडिंग प्लस में होगा और 0 एरर पॉजिटिव होगा। यदि पीछे है, 0 से पीछे है तो वो निगेटिव होगा, उसको निगेटिव एरर कहते हैं, और वो एक डिवीजन है तो -1/10 यानी 0.1 ये एम्पियर रीडिंग निगेटिव में हो गया। अब करेक्ट रीडिंग जब हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो पहला को तो हमने बता दिया, दूसरे का देखिए, दूसरे का रीडिंग प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, 0 एरर चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके साइन के साथ माइनस कर दीजिए, तो माइनस किया है तो ये 0.5 रीडिंग आ गया एम्पियर। और इसमें 5 डिवीजन देखना है आप, 5 डिवीजन इसका एमीटर रीडिंग बता रहा है सप्लाई देने के बाद, तो 5/10 हो गया, और माइनस में उसकी रीडिंग है तो -1/10 यानी 0.1, माइनस 2 बार है इसलिए प्लस होकर के 0.6 एम्पियर रीडिंग हो गया, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है। रेजिस्टेंस कब सर्किट में बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस जो आपने रेजिस्टेंस लिया है तो उसका रेजिस्टेंस कब बढ़ता है। कोई तार लिया आपने, तार सिंगल वायर है, यदि आपने उसको डबल कर दिया, सपोज कर ली ये वायर है, इसको आपने मोड़ दिया तो लेंथ आधी हो जाएगी, तो लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटने पर घटता है, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आई शुड राइट इट अपसाइड, मुझे ऊपर लिखना चाहिए इसको, ठीक है, मैं मिटाता हूं। इसको ऊपर देखिए, रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस वायर की लंबाई यानी जो भी रेजिस्टर आपने लिया है उसके लेंथ को यदि आप बढ़ाते हैं तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि डबल किया तो डबल रेजिस्टेंस, ट्रिपल किया तो मान लीजिए आर है तो 2R हो जाएगा, 3R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, यदि हाफ किया तो 1/2R होगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ये देखिए, ये वायर है, ये वायर है, तो पता है कि सिलिंड्रिकल वायर होता है, शेप सिलिंड्रिकल है, तो इसका एरिया जो है πr² होगा और ये a के बराबर होगा, ये लेंथ l है। तो एरिया यदि बढ़ता है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ती है, तभी जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर मोटा होगा
तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, पहले से डबल एरिया हो गई तो आधा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आर इजकल टू जब आप लिखते हैं तो रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए मीन्स क्या? रो एट वेयर रो इज resistivity of the wire. Resistivity of the wire. ये तार का रेजिस्टिविटी है। अलग अलग तार में आपको पहले ही बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस किस पर, रेजिस्टेंस वायर अलग अलग मेटल का होगा तो उसके रेजिस्टेंस मतलब कि अपना उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम अधिक होगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी मेरा मतलब कि अधिक फ्री होगा तो वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो अलग अलग मेटल का ये 10⁻⁸ रेंज में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो कंडक्टर का काम करता है, जो भी वायर होता है। तो ये कॉपर सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो सिल्वर है, उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम इसलिए ज़्यादा यूज होता है कि सस्ता है, हल्का है, इसको हैंडल करना भी आसान है और चीप है, और ये ओवरहेड लाइन में भी यूज होगा तो इसकी चोरी होने के भी चांसेस कम रहेंगे क्योंकि सस्ता है। ओके, अब देखिए रो इंटू एल बाई ए वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस हो गया। वो मेटल पर डिपेंड करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी है। लेकिन रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या होगा इसको आप ध्यान देंगे। रेजिस्टिविटी क्या है? वो मेटल का अपना रेजिस्टेंस के कारण उसमें रेजिस्टिविटी आती है। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए ये फिगर जरूरी है। ये मैंने बनाया है फिगर, क्यूब का बनाया है, एक फिगर बनाया है क्यूब, मेटल क्यूब। ये जिस वायर का आप रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहते हैं उसका एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मेटल लेंगे। क्यूबिकल ब्लॉक, यूनिट क्यूबिकल ब्लॉक। देखिए 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, यूनिट क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मेटल। और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इस साइड 1 मीटर उसका लेंथ होगा और एरिया भी 1:1, सभी फेसेज की एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही होगी। इस तरह का ब्लॉक यदि आप किसी मेटल का लेते हैं और दोनों में किसी भी दो अपोजिट वायर, मान लीजिए यहाँ आपने वायर जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, कनेक्ट इधर से जा रही इधर से निकल रही है, इसके बीच में आपने रेजिस्टेंस मेजर किया तो जो रेजिस्टेंस आएगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। अब इसको डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं, देखें। इट इज रेजिस्टेंस between any two opposite faces of unit cubical block of metal. Unit cubical block of metal. यूनिट क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मेटल। जिस मेटल का आप चाहते हैं उसके यूनिट क्यूबिकल ब्लॉक को लेते हैं और कोई भी दो अपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस आप मेजर करते हैं वही रेजिस्टेंस उस मेटल का रेजिस्टिविटी कहलाता है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर है। Okay, students, thank you.